evening, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. First of all, I Good am evening. introduce Good myself. evening, sir. Good evening, sir. Okay. Good evening. So first of all, I am introduce myself. I Good am evening, sir. Prashant Kumar. Please switch off your mics. Please, all of you, switch off your mics. So first of all, I am introduce myself. I am Prashant Kumar, your instructor for human values and environment. Have you any problem, Manisha Singh? Yes, sir. Sir, I want to know ki how I can edit my name because I'm not able to put my roll number. Okay. Kushbu, please check. Sobrato, Muskan Gupta, you raised your hand. Any problem? Sobrato, Muskan Gupta, if you have no problem, please down your hands. Am I visible? Am I visible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now you see on your screen, Yes, sir. we are from Chanakya Institute Yeah, of yeah. IT and Management, Yes, sir. a institute who provide vocational course, co-curricular course, and tie up with the Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. And your course is co-curricular course and title is Human Values and Environment Studies. Do you know all? Yes, sir. So I am Prashant Kumar. I am complete master's degree and UGC NET also. I am an instructor of Human Values and Environment Studies. So let's begin for the first session to the Human Values and Environment Studies. First of all, I am welcoming all guys in the first session.
Now begin. What is co-curricular course? What is co-curricular course? So you know we are reading co-curricular course. So first question is what is co-curricular course? यानी कि co-curricular courses क्या होते हैं? Do you know anyone? Anyone know this? Anyone give me answer? Guys, am I audible? Yes, sir. Anyone know the answer of what is co-curricular course? को-करिकुलर कोर्स कंपलसरी होते हैं एंड फिजिकली And? भी हमें हेल्प देते हैं. Anyone? Anyone else? So let's begin. What is co-curricular course? As you know, a co-curricular course refers to an educational program or activity that is complementary to the main academic curriculum, unlike the core academic courses that focus on traditional subjects like mathematics, science and literature, etc. तो इट मीन्स कि जो को करिकुलर कोर्सेज होते हैं वो आपके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं या मेजर एजुकेशन होता है जैसे मेन एकेडमिक करिकुलम होता है उनसे अलग होते हैं. ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और एक्टिविटी जो आपके मेन एकेडमिक से अलग होंगे. जैसे कि आपकी कोर एकेडमिक कोर्सेज कौन से होंगे? मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर, कॉमर्स एंड एक्सेट्रा. ओके, सो व्हाट इज को करिकुलर कोर्स? Now tell me, what is co-curricular course? Guys, am I audible? अरे वो इस वाले में नंबर प्लेट नहीं करी आई. Who is Yadav? Yadav, please turn on आपने mic. दूसरे नंबर प्लेट नहीं करा है. Yadav, turn off your mic. Who is Yadav? Yadav Tasu. Can you repeat again, sir? Yadav Tasu, please turn off your mic. A co-curricular course refers to an educational program or activity that is complementary to the main academic curriculum, unlike the core academic courses that focus on traditional subjects like mathematics, science, literature and etc. तो जो को करिकुलर कोर्सेज होते हैं वो आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, आपको अलग अलग प्रोग्राम सिखाने के लिए, एक्टिविटीज़ कराने के लिए आपके एजुकेशन में ऐड किए गए, जिससे कि आप जो आपकी कोर एकेडमिक्स है, आपकी कोर एकेडमिक जैसे कि लाइक आर्ट्स जो बीए में है उनके लिए आर्ट्स, बीएससी वाले उनके लिए साइंस और कॉमर्स, एजुकेशन. तो इन जो आपकी कोर एकेडमिक्स है उनको हट के उनके अलग कुछ सीखने के लिए को करिकुलर कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे कि आपको जो आपके कोर एकेडमिक्स है उसके हट से आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जा सके. तो नाउ ऑल क्लियर? Yes, sir. If you have any answer, if you have any question, please ask me about the co-curricular courses. What is co-curricular course? तो बताओ. Yadav Tasu, please turn off your mic. तो बताओ अभी बचेगा क्या? सर को सर्कुलर कोर्स वो होता है जिसमें हमें कक्षा से बाकी चीजें बताई जाती हैं जो चीज हमारे पढ़ाई से रिलेटेड ना होकर हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड होती है. Okay. Anyone else? बड़ वाली होती है एक तरह से. नहीं. Anyone else, guys? आप सभी को समझ आया को करिकुलर कोर्सेज क्या होते हैं? Now move to next slide. What is co-curricular course? Same. This course often include a wide range of activities such as sports, arts, music, drama, debate,
कम्युनिटी सर्विस, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड मोर। ये जो आपके अंदर जो स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं इनमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिसमें कि वाइड रेंज है एक्टिविटीज़ की, जैसे कि स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में भी सीख सकते हो, आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, डिबेट, कम्युनिटी सर्विस, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड मोर। तो को करिकुलर आपको दिखाई दे रहा है। आप लीडरशिप में आप क्या सीख सकते हो, आप एक लीडर की तरह कैसे अपनी टीम को लेके चल सकते हो। स्पोर्ट में आपको कोई गेम एक्टिविटीज़, कोई भी प्रिपरेशन फॉर यूनिवर्सिटी, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी प्रिपरेशन करना, अपनी पढ़ाई करना, एक्स्ट्रा एडिशनल एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, परफॉर्मिंग इन क्रिएटिव आर्ट्स, वेलबींग, लीडरशिप एंड चैरिटी। जो को करिकुलर कोर्सेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, म्यूजिक है, ड्रामा है, डिबेट है, कम्युनिटी सर्विसेज है, लीडरशिप डेवलपमेंट है और बहुत सारी चीज़ें। ओके, नाउ हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्स? एनीवन नो दिस? हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्स? जो को कोर्स है वो अदर कोर्स से डिफरेंस कैसे है, कैसे डिफरेंट है, ये कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन गाइस? सर जैसे जो हमारा कोर्स है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट, तो हम और कोर्सेज पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हमें एकेडमिक नॉलेज मिलती है, और जब हम ये पढ़ रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज तो हमें इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है, थोड़ा अपने सोसाइटी आसपास वाली चीज़ों के बारे में भी जानने को मिलेगा। ओके, किस बारे में नॉलेज मिल रही है इसमें? जो ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो वैसे भी जैसे हमको पता चल रहा है कि हमारा टाइटल क्या है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या होती हैं? सर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। किसका माइक ऑफ है? हाँ, अब यादव तासु, जी सर। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। सर ह्यूमन वैल्यूज जैसे काइंडनेस और दूसरों की हेल्प करना और सिंपैथी, एम्पैथी, लाइक दिस। ओके, एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करें, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, है ना? ये हम आगे भी देखेंगे अभी। तो हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज, चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसमें ना 5 चीज़ें हैं। ये आपको अलग कोर्सेज से डिफरेंट कैसे है, ये आपके किस किस पे काम करेगा? एक तो आपके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेगा। ओके, नंबर 2 इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एंड वेराइड सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। तो 5 कौन से हैं, प्लीज़ नोट डाउन। ये अलग कोर्सेज से डिफरेंट है, किस वजह से? एक तो ये आपके स्किल डेवलपमेंट्स पे फोकस करेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस करेगा एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन पे एंड वेराइड सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। ओके, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। आप बताइए, आपको नाम से क्या लग रहा है कि फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? आप लोग बता सकते हो कोई? एनीवन गाइस? स्किल्स क्या होती हैं, क्या होता है स्किल्स? देवेश यादव, मैं आपसे ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं स्किल्स के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या होता है स्किल्स? ओके, स्किल्स वो होती हैं जो हर किसी के पास नहीं हो सकती। अगर मेरी कोई एडिशनल स्किल्स है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी हो, यानी कोई ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको आती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्किल, है ना? तो इस पर स्किल डेवलपमेंट यानी कि आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज पे हम लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा, पढ़िए।
Co-curricular courses often emphasize the development of skill beyond academic knowledge. They aim to enhance students' abilities in areas such as teamwork, communication, leadership, creativity and problem solving. जो co-curricular courses होते हैं वो क्या करते हैं? डेवलपमेंट को एम्फेसाइज करते हैं, किसके? स्किल के डेवलपमेंट को, किसके अगेंस्ट, या सॉरी अगेंस्ट नहीं, किसके बियॉन्ड एकेडमिक नॉलेज के, यानी कि जो आपकी एकेडमिक नॉलेज है उसके अलावा भी आपको एम्फेसाइज करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स के लिए. दे एम टू एनहांस स्टूडेंट्स एबिलिटीज़ इन एरियाज सच एज टीम वर्क. ये क्या करते हैं? स्टूडेंट्स का एनहांस करते हैं किसकी? एबिलिटीज़ के, जैसे कि लाइक टीम वर्क, यानी जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं वो आपस में मिलके एक टीम की तरह काम कर सकें. कम्युनिकेशन, यानी आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन अपना अच्छा बिठा पाएँ. लीडरशिप, और लीडरशिप में आप एक अच्छे लीडर बन पाए, जिससे कि आप आगे चल के कोई भी टीम को या किसी भी पॉलिटिक्स में ऐसे कि आप लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए. क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव बने. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, जिससे कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएँ, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएँ. तो ये आपका फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट में. नेक्स्ट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट. चलिए देखते हैं व्हाट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट. While academic courses primarily focus on cognitive development. Cognitive development means, guys, cognitive development means So, cognitive, sir, I can't pronounce it, cognitive but development. हाँ, Sir, तो इसका cogni- मतलब, आप ब्रैकेट में देख पा रहे हो सब लोग? हाँ How Sir, people think, learn and remember information. यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसका मीन्स क्या होता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और कैसे चीज़ें याद रखते हैं. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आया? तो जो वाइल एकेडमिक कोर्स प्राइमरी फोकस ऑन, जो आपके एकेडमिक कोर्स हैं वो किस पे फोकस करते हैं? उनका प्राइमरीली फोकस क्या होता है? उनका प्राइमरीली फोकस क्या होता है? आप कैसे सीखेंगे, आप कैसे याद करेंगे, आप कैसे सोचेंगे, आप कैसे इन्फॉर्मेशन को अपने पास याद रख पाएंगे, यही होता है. आप सभी बीए वाले हो ना? जी सर. यस सर. हाँ, तो जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे तो उनको आप टीचर्स या प्रोफेसर्स क्या कराते हैं, या आपको वो तो नहीं कराते, आपको लर्न करना पड़ता है और आप उसके बारे में सोचते हो, कैसे सोचोगे उसके बारे में और कैसे चीज़ें याद करोगे. अगर हिस्ट्री की बात करें तो फैक्ट्स कैसे याद करोगे, ये सब चीज़ें हैं. लेकिन जो को-करिकुलर कोर्स है उसमें ऐसा नहीं है. इसमें क्या है, ये आपको को-करिकुलर कोर्स कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट में एक होलिस्टिक सोच पैदा करता है, एक होलिस्टिक सोच के लिए, जिससे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स में हो पाए. होलिस्टिक यानी सर, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब इमोशनली, सोशली एंड डेवलपिंग मोरल वैल्यूज. यस. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स, ओके. एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अच्छा, प्रैक्टिकल क्या होता है? डू यू नो एनीवन व्हाट इज प्रैक्टिकल? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होती है ना उनको सॉल्व करना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ओके, यूनिस जी. एनीवन एल्स? पढ़िए. Co-curricular activities provide opportunities for practical application of knowledge gained in academic course. For example, a leadership development course may allow student to apply leadership principle in real world situation. यानी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे कि अभी यूनिस जी ने बताया क्या, तो प्रैक्टिकल का मीन्स क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे काम करना या फिर उनको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना. जैसे कि आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो तो उनको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना, वो क्या होगा आपका प्रैक्टिकल
तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या आएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज गेन्ड इन एकेडमिक कोर्स. फॉर एग्जांपल, अ लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स में अलाउ स्टूडेंट टू अप्लाई लीडरशिप प्रिंसिपल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन. यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड कराती है एक अपॉर्चुनिटी किसके लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के लिए, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो एकेडमिक कोर्स से अलग भी एक नॉलेज प्रोवाइड कर पाए. जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं अ लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स, यानी कि जो भी लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्सेज होंगे में अलाउ स्टूडेंट टू अप्लाई लीडरशिप प्रिंसिपल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन. तो जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्सेज के, तो वो किसके लिए अलाउ करता है कि आप उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई कर सको, आप उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर सको. समझ में आया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? Guys, give me answer. Okay. Now voluntary participation. Voluntary क्या होता है? वॉलेंटियर आपने नाम सुना? सर वॉलेंट्री मतलब होता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको करो ही करो, मतलब आपके ऊपर, अगर आपका मन है करने के लिए तो आप कर सकते हो. ओके, ठीक है. यानी कि जो पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर कोर्सेज ऑफर इज वॉलेंट्री, यानी कि जो पार्टिसिपेशन है को करिकुलर कोर्सेज में वो कैसा है, वॉलेंट्री है. जैसा कि अभी बताया वैष्णवी ने कि वॉलेंट्री का मीन्स क्या होता है कि वो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, है ना. तो जो करिकुलर कोर्स है वो कैसा है, वॉलेंट्री है, जिसमें आपका पार्टिसिपेशन आप अगर करना चाहते हो तो करें, ना करना चाहे तो ना करें. लेकिन जो NEP है उसमें आपके लिए कंपलसरी है ये को करिकुलर कोर्सेज, ठीक है. तो अलाउइंग स्टूडेंट टू चूज एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड पैशन. और ये क्या अलाउ करता है कि स्टूडेंट को आपके पैशन के साथ, जो आप जिसमें इंटरेस्ट हो, आपको जिस चीज़ में पैशन है, आप उसको चूज़ कर पाएँ, उस एक्टिविटीज़ को चूज़ कर पाएँ. दिस वॉलंटरी एस्पेक्ट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ एंथुसियाज्म एंड एंगेजमेंट. ओके, दिस वॉलंटरी एस्पेक्ट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ एंथुसियाज्म एंड एंगेजमेंट. ओके, वाई इट इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट? बताइए इसका आंसर. ये कंपल्सरी सब्जेक्ट क्यों होना चाहिए? Guys, give me answer. क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में बहुत सहायतमंद होता है. डेली लाइफ में सहायतामंद होता है, सहायक ओके, हेल्पफुल होता है. कैसे होता है मिस स्वानी? सर जैसे कि हमने जो प्रीवियस जो हमारा सेमेस्टर था उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो ये हमारी डेली लाइफ के लिए काफ़ी यूजफुल था, जिससे हमें थोड़ा जो कहते हैं ना, मतलब ये है कि हॉस्पिटल तो लेके जाते हैं, बट जो उससे पहले जो फर्स्ट एड होती है जो जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं किसी को जीने में, तो वो भी हमने सीखा. तो ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, ओनली वैष्णवी गिविंग मी आंसर ऑल ऑफ क्वेश्चंस. एंड जैसे कि जो फूड न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट था वो हमारे खाने पीने के ऊपर था, डेली में हमें कैसी चीज़ें खानी चाहिए कैसी नहीं, एंड ऐसे भी हेल्पफुल है. तो ह्यूमन वैल्यूज एनवायरनमेंट स्टडीज से आपको क्या सिखाएगा? आपको सर ह्यूमन की वैल्यूज. यस, बोलिए सर. ये तो सर सबसे पहले हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर बताएगा और ऊपर से सर हमें ह्यूमन के बारे में कैसे रहना चाहिए, ह्यूमन के बारे हमारे में, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, यानी कि ह्यूमन के क्या क्या वैल्यूज होते हैं, यानी क्या उसके नैतिक कार्य होते हैं. नैतिक कार्य का मतलब समझते हो? यस सर. हाँ, तो नैतिक कार्य क्या क्या होते हैं? जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, साफ सफाई अपने पास रखना, दूसरों की मदद करना, रूल्स फॉलो करना गवर्नमेंट के, ये सब. और इन्वायरमेंट स्टडीज़ में यानी कि आप अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं. जैसे कि आजकल देखो आप सबसे ज़्यादा समस्या किस बारे में है? ग्लोबल वार्मिंग. सुना है ये वर्ड? यस सर. क्लाइमेट एक्सचेंज. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है गाइस? टेल मी. जो नॉर्मल तापमान है उससे ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है. यस, यही है ग्लोबल वार्मिंग. तो देखो पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी हम नवंबर स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर लास्ट में है ना.
लेकिन पहले जब छोटे छोटे थे या मे बी आज से 10 साल पहले, तो अक्टूबर में ना बहुत सारी सर्दी हो जाती थी, सभी लोग स्वेटर्स में आ जाते थे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और अभी आप लोग फैन ऑन करके बैठे होंगे, एसी ऑन करके बैठे होंगे। यस सर। हाँ, तो क्या हुआ, ये कैसे चेंज आया ये? तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यानी कि एक इस हद तक हम लोगों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे कि पर्यावरण खुद को बदल रहा है या हम ही उसको बदलने में लगे हुए हैं। पहले जंगल हुआ करते थे, पहले शहरों में बाढ़ नहीं आती थी या नहीं आती थी? रेयरली आती थी पहले। अभी सडन आ जाती है। कैसे? क्योंकि जो पहले जो नदी मानो आपकी अगर नदी की चौड़ाई अगर 500 मीटर थी, अभी वो 250 मीटर रह गई है। लेकिन उसके बाद लोगों ने क्या किया कि वो 500 मीटर से जो 250 मीटर है वो 300 मीटर तक तो उन्होंने फ्लैट्स बना लिए, मकान बना लिए। अब जब नदी अपनी पूरी उस पर आएगी, जब उसमें पूरी तरह से पानी आएगा लास्ट टाइम जैसे पहले रहता था, तो वो क्या करेगी? वो तो अपनी पूरी जगह लेगी या नहीं लेगी? हाँ या ना गाइस? यस सर। हाँ, तो यही रीज़न है कि हम लोग ना पर्यावरण से छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। तो सेव एनवायरनमेंट। चलिए अब देखते हैं व्हाई इट इज़ कंपलसरी सब्जेक्ट। देखिए इसके 5 हैं। नंबर 1 होलिस्टिक एजुकेशन फिलॉसफी, स्किल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, डाइवर्स एक्सपीरियंस, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। 5 कौन से हैं? होलिस्टिक एजुकेशन फिलॉसफी, स्किल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। एम आई विजिबल गाइज? यस सर। ओके, तो नंबर 1 इज होलिस्टिक एजुकेशन फिलॉसफी। होलिस्टिक एजुकेशन जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा था ना? यस। हाँ, तो होलिस्टिक एजुकेशन फिलॉसफी क्या बोलती है? देखिए, educational institutions increasingly recognize the importance of providing a holistic education that goes beyond academic co-curricular activities contribute to this holistic philosophy। यानी कि होलिस्टिक एजुकेशन फिलॉसफी में आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एजुकेशन क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी कि आपकी नैतिक एजुकेशन को दैट गोज बियॉन्ड एकेडमिक्स, यानी जो आपके एकेडमिक से परे हो, आपको नैतिक इंसान बनाने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू दिस होलिस्टिक फिलॉसफी। यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर कोर्सेज हैं, वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फिलॉसफी में। ओके, नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट हम बार बार देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलपमेंट होता है को करिकुलर कोर्स से गाइस। तो देखिए, कंपल्सरी को करिकुलर कोर्सेज इंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ रेंज ऑफ स्किल्स दैट आर वैल्यूएबल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। यानी कि ये कंपलसरी है कि को करिकुलर कोर्स इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं किसकी? जिससे कि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट कर पाएँ। जैसे कि आप में से किसी को हो सकता है गिटार आता हो या कोई भी चीज़ आती हो, पेंटिंग आती हो, लेकिन आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स में नहीं लिया उसको, आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स में नहीं लिया। जैसे कि हमारे पास वोकेशनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है BCS, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। तो हो सकता है कुछ लोग कंप्यूटर से रिलेटेड के इंटरेस्टेड हों, लेकिन उन्हें नहीं लिया एज अ सब्जेक्ट उसको कंपलसरी, है ना? तो उनके लिए वोकेशनल कोर्स, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? वोकेशनल कोर्स में ले लिया BCS को। तो BCS में हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? BCS में हम बेसिकली कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बेसिक जो भी होती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और स्किल्स बहुत सारी कंप्यूटर की, टैली वगैरह, ये सब। तो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में आपको ये सब पढ़ाया। तो जिससे हमारा क्या हो रहा है कि जिसने अगर वो मेजर सब्जेक्ट नहीं लिया तो वोकेशनल या को करिकुलर में जाके उसने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जिसमें उसका इंटरेस्ट था या जिसका उसमें जो इसके लिए पैशनेट था। तो ये आपके स्किल डेवलपमेंट की वाइड रेंज प्रोवाइड कराती है, ठीक है।
और जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको कंप्यूटर तो आना चाहिए एटलीस्ट। यस सर। हाँ, तो ये होगी आपकी पर्सनल कि आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल जो भी है वो सब क्या है, ऑनलाइन है, तो आपको पर्सनली आना चाहिए पूरा सब कुछ। अब बात करते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ में जैसे कि अगर आप किसी भी जगह जाते हो जॉब के लिए, तो अगर आप बताओगे कि मेरे को कंप्यूटर्स की ये सारी स्किल्स आती है, तो वो आपको अच्छा पैकेज देगा? यस सर। हाँ, देगा या नहीं देगा? जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो अगर मैं कहीं भी अपनी डिग्री लेके जाऊँगा तो वो मेरे को अच्छा पैकेज देगा या नहीं देगा? आईटी कंपनी मेरे को अच्छा पैकेज देगी या एक एमए वाले को अच्छा पैकेज देगी? एमए वालों आपको सर। देगी अच्छा पैकेज। एक आईटी कंपनी में अगर मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ इंसान जा रहा हूँ और एक एमए किया हुआ इंसान जा रहा है, तो कंपनी किसको अच्छा पैकेज देगी? एमएससी आपको एमएससी वाले को सर। एमएससी वाले को। स्किल पे हो सकता है मैंने एमएससी की हो लेकिन उसकी स्किल्स मेरे से ज़्यादा अच्छी हो, तो फिर उसको दे सकती है ना? ऐसा भी हो सकता है ना? यस सर, जिसके लेकिन पास अगर ज्यादा डिग्री के बेस पे देगी तो मेरे को ज़्यादा देगी। बट सर स्किल इम्पोर्टेंट ना सर, अगर डिग्री बेस्ड वो आपको पैकेज दे रही है तो वो तो मेरे को ज़्यादा देगी ना डिग्री बेस्ड पे, क्योंकि मेरे पास तो कंप्यूटर की डिग्री है। लेकिन सर काम तो स्किल से ही आएंगी। लेकिन मेरे को स्किल से नहीं आती, तो मैं हो सकता है उस टाइम मैं ज्वाइन कर जाऊँ, क्योंकि डिग्री की बेस्ड पे मैं ज्वाइन कर जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे पे स्किल्स नहीं आती, और कोई भी कंपनी आपको स्टार्टिंग से तो सिखाएगी नहीं। यस सर। तो वो सिर्फ आपको उतना ट्रेन करती है जिस तरह कंपनी के लिए काम आना है, यही होगा। तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट भी करती है, को करिकुलर कोर्सेज। ओके यस सर। ओके, आपको Yes, समझ sir. आया एग्जाम्पल के साथ? सर समझाओ। और नेक्स्ट इज कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस। कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस। व्हाट इज कैरेक्टर बिल्डिंग? यानी कि हिंदी में बोले तो चरित्र निर्माण। अब चरित्र Yes, निर्माण sir. क्या होता है गाइस? यानी कि एक वेल कैरेक्टर्ड इंसान आप लोगों को बनाना। को करिकुलर कोर्स का एम क्या है कि आपको एक वेल मैनर्ड, वेल कैरेक्टर्ड इंसान बनाना। तो को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफन कंट्रीब्यूट टू कैरेक्टर बिल्डिंग, फॉस्टरिंग क्वालिटीज सच एज डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिलेंस एंड टीम वर्क। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती है किसमें? कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपकी क्वालिटीज़ में, सच एज डिसिप्लिन, responsibility, resilience and teamwork. Okay guys, and next is diverse experience. Mandatory co-curricular activities expose students to a variety of experience they may not have chosen on their own, broadening their horizons and encouraging them to explore new interests. यानी वो क्या करती है? आपको एक प्रोवाइड कराती है किस पे? आपको नए नए इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का मौका देती है, यानी कि आप नए नए एक्सपीरियंस लीजिए, ये आपको प्रोवाइड कराती है। कैसे? मैंडेटरी करिकुलर एक्टिविटीज एक्सपोज स्टूडेंट टू वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दे मे नॉट हैव चूजन ऑन देयर ओन, यानी कि जो उन्होंने खुद से नहीं चूज़ किए हो, ऐसे एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करा देती कभी कभी। ब्रॉडनिंग देयर हॉरिजॉन्स एंड इनकरेजिंग देम टू एक्सप्लोर न्यू इंटरेस्ट, और उनके जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में इनकरेजिंग करती है किसके लिए? न्यू इंटरेस्ट, ताकि आप लोग एक्सप्लोर कर पाएँ नई नई चीज़ों को। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। एज वी ऑल नो, ह्यूमन इज अ सोशल क्रिएचर। ह्यूमन इज अ सोशल क्रिएचर, यस और नो? Am I audible guys? यस सर। Yes, sir. Okay, तो आंसर बताइए फिर। Am human is a social creature? यस सर। है ना?
अब शेर तो नहीं होगा सोशल क्रिएचर, या शेर भी सोशल क्रिएचर है? सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो जरा देखते हैं इसको अच्छे से। Co-curricular activities often incorporate social and emotional learning components promoting interpersonal skills and emotional intelligence। यानी कि co-curricular activities आपको कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट सोशली और इमोशनल लर्निंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराती है, प्रोमोटिंग इंटरपर्सनल स्किल्स, और प्रमोट करती है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को। कुछ इमेजेस देखते हैं, देखिए आपको क्लियर दिख रहा है क्या? थोड़ा सा अगर आप लोग फोन में तो मे भी शायद थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो। यस सर। इसमें देख लीजिए, इसमें दिख रहा है? यस सर, क्लियर है। आ रहा है ना क्लियर? तो देखिए एक लिखा हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट, है ना, सेल्फ अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप स्किल्स, सोशल अवेयरनेस, यही है ना? यस सर। यस सर। इसमें देखिए, इसी वाले में देखिए बस, है ना, दोनों में सेम ही है। देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। रिकॉग्नाइजिंग वंस इमोशंस एंड वैल्यूज एज वेल एज वंस स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। रिकॉग्नाइजिंग वंस इमोशंस एंड वैल्यूज एज वेल एज वंस स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, यानी कि हम उसके इमोशंस को या उसके वैल्यूज़ को हम पहले से जान सके, और उसकी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को भी, यानी लोगों के दूसरे के द्वारा दिए गए चैलेंज और स्ट्रेंथ को हम उसकी दूसरी स्ट्रेंथ को जान सके। यही होता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद से अवेयर होना। सेल्फ अवेयरनेस का वर्ड का मीन क्या है? खुद से अवेयर होना, यही है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि आप दूसरों के इमोशंस और वैल्यूज़ के बारे में सेल्फ अवेयर रहिए। रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? निर्णय लेना। यस सर। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? निर्णय लेना। मेकिंग एथिकल कंस्ट्रक्टिव चॉइसेस अबाउट पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर, मेकिंग एथिकल कंस्ट्रक्टिव चॉइसेस अबाउट पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर। तो आप इसमें आप एथिकल कंस्ट्रक्टिव चॉइसेस, यानी एथिकल यानी नैतिक, यही होता है एथिकल का मतलब। तो एथिकल का मेन मतलब तो यही है, नैतिक। यस। अबाउट पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर, यानी कि अपने प्रति और लोगों के प्रति कैसा बिहेव करना है, कैसे क्या लेना है, इस बारे में आपको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा इस डिसीजन को लेके। नेक्स्ट, रिलेशनशिप स्किल्स। रिलेशनशिप स्किल्स, फॉर्मिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, वर्किंग इन टीम्स, डीलिंग इफेक्टिवली विद कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप दूसरों लोगों के साथ कैसा रिलेशन रखते हो, कैसे रहते हो, दोस्तों के साथ कैसे रहते हो, फैमिली में कैसे रहते हो, कोई अननोन पर्सन मिलता है तो उसके साथ आप कैसे बिहेव करते हो, तो ये सब आपके रिलेशनशिप स्किल्स। ओके। सोशल अवेयरनेस, शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए सोचना और दूसरों के लिए क्या रखना? दया की भावना, दूसरों के लिए दयालु रहना, यही है सोशल अवेयरनेस। Yes, sir. Understanding and empathy for others. Next is self-management. Managing emotions and behaviors to achieve one's goal. यानी कि आपको किस पे सेल्फ मैनेजमेंट पे काम करना है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? What is management? सर किसी चीज की व्यवस्था बनाना। मैनेज का मतलब होता है, मतलब वे में बना के रखना कोई भी चीज़, है ना, एक प्रॉपर वे में। यस सर। मतलब इसमें क्या है कि आपको अपने इमोशंस और बिहेवियर्स पे मैनेज करके रखना है, उनको कंट्रोल में रखना है, जिससे कि आप अपना गोल अचीव कर पाओ। देखिए दूसरे इमेज में भी सेम वही है, सेल्फ अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप स्किल्स, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, वही चीज़ है ना? यस सर। यस सर। ओके। अगर इसमें पढ़ के देखें तो सेल्फ अवेयरनेस में रिकॉग्नाइजिंग वंस इमोशन, वैल्यूज एज वेल एज वंस थॉट एंड चैलेंजेस, सेम है, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है। मेकिंग एथिकल कंस्ट्रक्टिव एथिक्स अबाउट पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर, रिलेशनशिप स्किल्स में फॉर्मिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, वर्किंग इन टीम्स, डीलिंग इफेक्टिवली विद कॉन्फ्लिक्ट,
social awareness, showing understanding and empathy for others, self-management, managing emotions and behaviors to achieve one's goal. अब डिफरेंस बिटवीन को करिकुलर कोर्सेज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि को करिकुलर कोर्स और को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है ना? अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो तो देखो, वो को करिकुलर कोर्सेज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एनहेंस स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि दोनों ही जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स का उसको एनहेंस करते हैं, यानी कि आप लोगों के डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। यानी दोनों में सेम चीज़ है कि को करिकुलर कोर्स भी आपका डेवलपमेंट करेगा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी। फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर ऑफन मोर इनफॉर्मल, एक्सपीरियंशियल एंड पार्टिसिपेटरी, यानी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंशियल होती हैं और पार्टिसिपेटरी होती है, यानी आप लोग पार्टिसिपेट करो तो कर लो वरना मत करो। वाइल लेकिन को करिकुलर कोर्सेज क्या होते हैं? अफॉर्मलाइज्ड। वो कैसे होते हैं? एक फॉर्म प्रॉपर वे में होते हैं। स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी अगर हम इनको बोलें तो ये कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यानी ये एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है स्पेशली एसोसिएट विद द को करिकुलर एरिया, यानी जो एसोसिएशन बनाते हैं किसके साथ? को करिकुलर एरियाज में, जैसे कि अगर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, ये है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ है और सेल्फ अवेयरनेस है, ये सब को करिकुलर एरियाज में बनाते हैं। ठीक है, अब पढ़िए को करिकुलर कोर्स। को करिकुलर कोर्स इज अ फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर एजुकेशनल प्रोग्राम विद डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स and outcomes. It is a specific course or set of courses associated with a co-curricular activity providing in-depth learning and skill development in a particular area of interest। यानी वही बात है कि ये कैसे कोर्सेज होते हैं जो स्टूडेंट्स के स्किल्स पे काम करते हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, यानी वो उसमें इंटरेस्ट, जिसमें वो पैशनेट है, जिसमें इंटरेस्टेड है, वो अपना ले ले और उसमें अपनी डेवलपमेंट करे और डेप्थ लर्निंग ले उसमें। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, द प्राइमरी फोकस इज ऑन स्ट्रक्चर लर्निंग, skill development and acquiring knowledge related to the specific co-curricular area. Courses have defined learning objectives and may involve assessments and evaluations. Participation through enrollment is usually formalized with students' options to take the course as part of their academic curriculum. There may be quizzes, assessments and grades associated with the courses. The course is integrated into the academic curriculum, contributing to a student's overall academic progress. It may have credit bearing implication and be recognized on academic transcripts. For example, form a course on leadership development, music theory, dance techniques or specific skills related to a co-curricular activities. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? इसका जो प्राइमरी फोकस क्या होगा? वो होगा एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पर। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग क्या होती है गाइस? व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग? यानी एक प्रॉपर वे में आपकी लर्निंग, यानी अगर आप देखें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो स्ट्रक्चर्ड है, ऐसा तो नहीं है पहले आपने 12th की फिर लास्ट बाद में 10th कर लिया, ऐसा है क्या? नो सर, ऐसा नहीं है ना। तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि पहले हम, अब तो आजकल पीजी में भी जाते हैं, यानी पहले हम प्ले ग्रुप में जाएंगे, फिर नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG, देन फर्स्ट, फिर 12th तक हम ऐसे जाएंगे। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद डॉक्टरेट, यही है। तो एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर लर्निंग में हम लोग काम करेंगे स्किल डेवलपमेंट पे और एक्वायरिंग नॉलेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक को करिकुलर एरिया, यानी जो हमारा को करिकुलर सब्जेक्ट है उस एरिया के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है गाइस। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दीज आर ऑफन इनफॉर्मल, एक्सपीरियंशियल एंड पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज दैट स्टूडेंट एंगेज इन आउटसाइड द रेगुलर क्लासरूम सेटिंग, यानी यहाँ पे स्टूडेंट जाके, यानी डेली क्लास में ना होके बाहर भी हो सकता है, कहीं भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। होती रहती है ना को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये 1 दिन की भी हो सकती हैं, 2 दिन की भी हो सकती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटीज ऑफन फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, फोस्टरिंग स्किल्स सच एज लीडरशिप, टीमवर्क, कम्युनिकेशन एंड सोशल एंगेजमेंट. While learning occurs, it may be more experiential and less formalized. Participation is open, voluntary and involvement is based on student. यानी कि जो इसमें पार्टिसिपेशन होता है वो कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है और बेस्ड ऑफ स्टूडेंट, यानी आपके इन्वेस्टमेंट पे होता है या इन्वॉल्वमेंट पे होता है, आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो उस एक्टिविटीज़ के लिए, तभी होता है। एंड अवेलेबिलिटी और योग्यता के रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन में वेरी।
These activities are generally considered complementary to the academic curriculum, providing additional learning experience but not necessarily integrated into formal course book. For example, participation in a debate club, playing on a sport team, involvement in community service projects और joining a music band. यानी ये आप सबकी क्या होगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़. यानी आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी स्पोर्ट टीम में प्ले कर रहे हो, या फिर किसी कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स पे यानी जो NGOs के होते हैं उन पे काम कर रहे हो, या कोई भी म्यूजिक बैंड ज्वाइन कर रहे हो, यानी कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आएंगे. अब व्हाट इज एक्स्ट्रा करिकुलर वर्सेस को करिकुलर. एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर. तो देखिए को करिकुलर कोर्सेज, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर वर्सेस को करिकुलर. यानी एक देखिए इनमें सब में एक साइकिल चल रही है. साइकिल चल रही है, को करिकुलर कोर्स, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर वर्सेस को करिकुलर. यही एक साइकिल घूमती रहती है. while both extra curricular and co-curricular activities involve experiences outside the traditional academic curriculum, the terms are sometimes used interchangeably. However, co-curricular activities are often more closely integrated with the overall educational goals of the institution. यानी while both extra curricular and co-curricular क्या होता है, एक्सपीरियंस में आउटसाइड द ट्रेडिशनल एकेडमिक को करिकुलम, यानी जो आपकी हमारी जो चली आ रही है एकेडमिक्स उससे अलग होता है. द टर्म्स आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली. हाउएवर को करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑफन मोर क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द ओवरऑल एजुकेशनल गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन. यानी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो कभी कभी इंटीग्रेटेड हो जाते हैं किससे, एजुकेशनल गोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ. को करिकुलर कोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट. Skill development refers to the process of acquiring and enhancing specific abilities, competencies, and expertise that enable individual to perform tasks effectively, efficiently, and with proficiency. Okay? Skill development is a dynamic and ongoing process that involves acquiring, refining, and adapting various skills to meet personal, professional, and social demands. These skills can be related to various aspects of personal, professional, and social life. Skill development is a continuous and lifelong process and it plays a crucial role in personal growth, career advancement and overall success. तो skill development क्या रेफर्स करता है, the process of acquiring and enhancing specific abilities, यानी जो आपकी specific abilities हैं उनको acquire करना, उनको बढ़ाना, अच्छा करना. Competencies and expertise that enable individual to perform tasks effectively, यानी जिससे कि expertise and enable individuals to perform tasks, और आपको एक अच्छा इंसान बनाना और इंडिविजुअली आपको ऐसा बनाना है जिससे कि आप कोई भी टास्क इफेक्टिवली कर सको एंड एफिशिएंटली एंड विद प्रोफिशिएंसी. तो आपको ट्री दिख रहा होगा, देखो. नंबर 1 टेक्निकल स्किल, एप्टीट्यूड, प्लेसमेंट, ग्रूमिंग, कॉर्पोरेट एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, रियल टाइम इंटर्नशिप. तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट में आता है आपका. ओके, यस सर. अब नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज. यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है किसकी, ह्यूमन वैल्यूज की और एनवायरनमेंट स्टडीज की. देखिए जो आपके कोर वैल्यूज है, देखिए आपके कोर वैल्यूज देखिए क्या क्या हैं. कोर वैल्यूज बताइए. टीम वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर्स, एथिक्स, इनोवेशन, ट्रस्ट, गोल्स. यही है कोर वैल्यूज ह्यूमन की. यानी अपनी लाइफ में एक गोल होना, टीम वर्क करना या टीम वर्क होना आना चाहिए, टीम वर्क करना आना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना आना चाहिए, कस्टमर्स यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको कस्टमर्स बनाना आना चाहिए, आप एक नैतिक इंसान हो, एथिक्स एक नैतिक इंसान हो, इनोवेशन यानी आप एक इनोवेटिव माइंड हो या नहीं हो. ऐसा तो नहीं कि सभी इनोवेटिव माइंड हो, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते. एंड ट्रस्ट, और आप लोगों पे ट्रस्ट कर पाओ. तो ये आपकी कोर वैल्यूज़ हैं. तो आप पढ़े ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज. को करिकुलर कोर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली to the holistic development of individuals and foster a sense of responsibility towards oneself, society and the environment. Incorporating human values and environment studies as co-curricular course enhances the educational experience and preparing individuals to contribute positively to society and the planet. यानी जिससे कि आप ह्यूमन वैल्यूज सीख पाओ और एनवायरनमेंट का ख्याल रख पाओ, जो क्या करे आप कंट्रीब्यूट कर पाओ. कैसे पॉजिटिवली, किसके लिए, सोसाइटी के लिए और इस प्लेनेट के लिए. अगर प्लेनेट होगा तो हम रहेंगे और उसी सोसाइटी में हम रहते हैं. यही है ना. हाँ ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एज अ को करिकुलर कोर्स. यानी एनवायरमेंटल स्टडीज की इम्पोर्टेंस क्या है एज अ को करिकुलर कोर्स.
The inclusion of environmental studies as a co-curricular course is crucial for fostering environmental awareness, sustainability education and global citizenship. This course provides students with a comprehensive understanding of ecological issues, empowering them to make informed decisions that contribute to environmental conservation. The inclusion of environmental studies as a co-curricular course is crucial for fostering environmental awareness, जिससे कि लोगों में क्या आए, environmental awareness आए, यानी environment को लेके वो लोग क्या हों, aware हों, environment को लेके लोग कैसे हों, aware हों, sustainability education आए, global citizenship आए. This course provides students with a comprehensive understanding of ecological issues, empowering them to make informed decisions that contribute to environmental conservation. जो मिशन इको करिकुलर का वो क्या है, लास्ट स्लाइड है गाइस. मिशन क्या है? द मिशन ऑफ द कोर्स ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज इज टू क्रिएट morally articulate solution to be truthful and just and to become responsible towards humanity. The course seeks to establish a continuous interest in the learners to improve their thought process with intent to develop a new generation of responsible citizens capable of addressing complex challenges faced by the society due to disruption in human interactions affecting human values. जो मेन मिशन है वो क्या है? एक ऐसा मोरली इंसान क्रिएट करना, एक मोरली इंसान बनाना जो ट्रुथफुल हो और जो क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो. किसको लेके? ह्यूमैनिटी को लेके, यानी ह्यूमैनिटी के लिए वो कैसा हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी मानवता के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो. द कोर्स सीक्स टू एस्टैब्लिश अ कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इन द लर्नर्स टू इंप्रूव देयर थॉट प्रोसेस with intent to develop a new generation of responsible citizens capable of addressing complex challenges faced by the society due to disruption in human interaction affecting human values. यानी ये कोर्स और क्या प्रोवाइड करता है, जो लर्नर्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है, उनकी थॉट प्रोसेस को किसमें डेवलपमेंट करने में, किसमें न्यू जनरेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स. सो गाइस, आज का सेशन इतना ही. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी. फुल असाइनमेंट बता दीजिए. पहले आज पहली क्लास है, आपका फर्स्ट सेशन था, अभी असाइनमेंट कैसे बता दो? अभी तो सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्लास से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे. ओके सर. सर अटेंडेंस होगी आप लोगों की. सर मेरा नाम आशुतोष है. क्या नाम है? आशुतोष बोल रहा हूँ सर. ओके ओके. पापा का नंबर से नाम शो हो रहा होगा. कोई नहीं. यस सर, इसलिए मैंने अपना नाम बता दिया. अब आपको समझ में आ गया को-करिकुलर कोर्सेज है वो क्या है? आपको समझ आए? यस सर. कोर्स पढ़ रहे थे तो उसके बारे में हमें पहले से आना चाहिए कि को-करिकुलर कोर्स क्या है ना? तो को-करिकुलर कोर्सेज क्या है? Please turn off your mic. Thank you. तो गाइस, आपका कोई क्वेश्चन? अगर मैं आपको सिलेबस बता दूं तो मे बी आपके सिलेबस में 4 यूनिट हैं. एक मिनट. आपके सिलेबस में 4 यूनिट हैं. ठीक है, धीरे धीरे हम उन पर काम करेंगे. जो नेक्स्ट सेशन होगा वो सिलेबस से स्टार्ट होगा. आपका फर्स्ट यूनिट 1 है ह्यूमन वैल्यूज़, तो उसमें हम ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में देखेंगे. तो गाइस, आज तो लोग कम हैं, आज स्ट्रेंथ अच्छी खासी नहीं है. आज सिर्फ 38-40 मैक्स हुए हैं. नेक्स्ट टाइम से स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. ओके ओके, बोलिए. अब बोलिए, क्वेश्चंस बोलिए अपने अपने. ओके सर. सर कल सर ने बताया था कि जो आप प्रेजेंट लगाएंगे तो रोल नंबर लिख के और नाम डाल के लिखना भेजना है. तो आप उसी तरीके से प्रेजेंट आएंगे या तो आप खुशबू से मैसेज कर लीजिएगा, वो बता देंगी आपको. ओके सर. देखो मैं बता दूँ आपको, सुनो. आपको सर ने बोला था आपका नाम है, आपको पहले रोल नंबर डालना अपना, उसके बाद में आपका जो कॉलेज का नाम है ना वो डालना है आपको. तो आपका जैसे नाम आता है ना गूगल पे सुहानी खान, तो आपको पहले अपना रोल नंबर डालना है उसमें, जो आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम में आपका नाम डालना है. ठीक है,
तो उस तरीके से आपका नाम और रोल नंबर दोनों आ जाएंगे। चेंज करना तो आपको आता ही होगा, आप गूगल की सेटिंग्स में जाएं, पर्सनल में जाएं और उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, है ना। Anyone else for questioning? नो सर। Okay. Thank you guys for today's session. Let's see Thank you, sir. you in next session. And guys, wish you a very happy Diwali to all of you. Same to you, Same to you, sir. Okay. Let's Same to you, meet sir. in next session. Yunus Thank you, sir. guys. सर Thank you for joining. हेलो यूनुस सर। हाँ हाँ बोलो। सर आप जो वेब डेवलपमेंट की क्लासेस ले